Hello everybody, and welcome back to our YouTube page uh, for Clean Oil Filtration India Private Limited. And at this time, I hope everyone is doing okay, or as everyone is keeping safe and healthy, as well as their families. We have been in production for the last 2 weeks now, and coming back, uh, इंडस्ट्री में अब काफ़ी काम स्टार्ट हो गया है, तो we begun moving in, and we are trying to maintain the oils and lubricants around the industrial belts, जो भी industries है. तो थैंक यू फॉर कमिंग बैक एंड जस्ट समरी दैट आज का जो वीडियो है हम बेसिकली बना रहे हैं जो करंट सिचुएशन है कोविड-19 को लेकर और इंडस्ट्रीज़ में क्या इश्यूज फेस हो रहे हैं एंड एट द सेम टाइम I'd like to advise that there's how lubricants are being treated in the industries and how you can come out of these industries. Come out of the situations being faced in the industries और क्या situations क्या इश्यूज हमारे कस्टमर्स को आए हैं लुब्रिकेशन को लेकर, ऑयल्स को लेकर, और क्या बेनिफिट्स हम आपको दे सकते हैं. तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, दिस पेज इज़ नाउ मोर एन एजुकेशनल पेज on how we can assist you and how we can advise more and give more information on lubricants, oils, and complete maintenance of your plants. So, coming in, I'd like to introduce Mr. Rahul Pawar, who's been with us in the office now and has great experience with Shell and lubricants and coolants at the same time. So, good experience and the perfect guy and key guy to go to when we talk about lubricants and coolants and how it can benefit and how proper safe handling of lubricants and coolants जो आप अपने इंडस्ट्री में रख सकते हैं. And we can get a lot of savings to the industry. Rahul. Good morning, everyone. Today, our main objective is to discuss. First of all, we would like to discuss about the lubricant, but at the same time, we would like your plant to minimize your costs because the situation which we are facing, the situation in which everyone is today, is to save the costs because there are no a lot quantity of orders are not there, so we need to minimize our cost, and replacing your lubricant is not an alternative to that. So I will rather suggest you to filter the oil, clean the oil instead of replacing the entire lubricant because replacing a lubricant goes with a lot of cost. Also, Rahul, I think what people जो लोग देखते हैं कि अगर आप oil अपना साफ रखें तो you get a lot of savings at the same time you can show to the company in terms of energy consumption and also performance of the machine. So that is something I feel is another savings that people can show to the company when it comes to lubrication, cleaning, and keeping the oil well maintained. Yeah, definitely, exactly. That is the same. That is the right scenario. And what you guys have faced is for the last 2.5 months, 2 months to be approximate, your plants are entirely into the shutdown mode. Your machines are into shutdown. The sumps are totally not used. The oil is not circulated. And since oil is a hydrocarbon, it's a mixture of hydrogen, oxygen. There is a moisture that is being developed into your system, and especially in your sumps. So you might be observing a lot of rust contamination on the top layer of the sump when you open the top cap. So I would rather suggest you to please go for the inspection before allowing your machine to run, because if contaminated oil runs into the system, there are very fine tolerances there are very fine clearances of your servo valves, your piston pumps, your ramps, your gear pumps, your pumps, because in a hydraulic system, if I talk about, gears are the sole heart of the system. Yes. So if your pump fails, your gear pump or suppose wind pump, whatever might be the pump is, if your pump fails, the cost will multiply in tens and thousands of times. So I would suggest you to please perform a preliminary check on your system, on your oil, and after that you just should start your machine. Before checking, please do not start your machine. So क्या कहते हैं, let's go straight into a presentation which we've created for everyone ताकि सबके लिए आसान रहेगा कि आप इस टाइम पे coming out of lockdown अपना lubrication अपनी oils कैसे रखनी चाहिए and कैसे maintenance करनी चाहिए, and just a rundown अभी what is lubrication,
what is the best, what are the best ways of maintaining your coolant and your oils, and how to maintain them in the long run. Basically what we have decided today is our flow of presentation will go, मतलब बहुत ज़्यादा मैं टेक्निकल में नहीं जाऊँगा, बहुत ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा. I'll just be very brief, very appropriate. हम सबसे पहले lubricant के basics से start करेंगे. We'll start with the basics of lubricant. After that we will discuss slightly what are the current trends of hydraulics into your system, and you might be knowing that more better than me, but I'm just adding up from my side. And after that we'll discuss in brief about what are the type of gears, what is the contamination, what is the micro pitting that is developed into the gears that can lead to the damage of into your gear boxes. And after that we will go into the contamination, what are the causes of contamination, how contamination enters into the system, and the primary causes I suppose is the breathers, the rust that is developed into the system, and a lot more things. We'll discuss that. Thereafter we'll go to the storage and handling part. We will go into the contamination ISO 4406, that is the cleanliness level, because as I told you earlier, we need to inspect the oil. And what is the main parameter to inspect the oil? That is, earlier used to say NAS. Right now we are talking about ISO 4406, in which we are going to measure the 4, 6, 14 micron size. So I'm just going to give you a brief introduction. What are the various codes? What are the cleanliness levels supplied by the lubricant manufacturers in brand new oil? Suppose you are saying I am putting a brand new oil, and what I can say is even a brand new oil is not clear, not clean. The contamination might be high, so we need to go through that. Perfect. So let's go into it now. Starting off with the presentation. You'll be seeing a lot more of the presentation and less of us because जितना आप देख सकते हैं उतना ज़्यादा descriptive रहेगा. So this is our company Clean Oil Filtration. आप तो जानते हैं, we've come on our page before. So yes, we will start with what is lubrication. As you guys know, lubricant is basically a set of refined mineral oil. Whatever the crude that is refined, आपने college में school में पढ़ा होगा fractional distillation column. By means of that, the crude which is pumped from the earth, mother earth, उसको हम distillate करते हैं, separate करते हैं, lubricant बनता है. Basically lubricant होता दो type का है, एक basic and mineral. आपने सुना होगा. Now lubricant, what exactly is a lubricant? Lubricant के अंदर basically दो type के major components होते हैं. First is base oil, second is the additive. Additives बहुत type के हो सकते हैं, next slide में मैं आपको बताऊंगा. So basically क्या है, एक perfect mixture base oil और lubricant का, it leads to the formulation of a lubricant. So जैसे अभी मैंने बताया, the base oil lubricants are of majorly of two types, but there is another category जो कुछ companies ने introduce करी है, that is the semi-synthetic. Base oil is mineral, semi-synthetic and synthetic. Just like जैसे नाम बताता है, just like the name suggests, base oil is totally refined from the crude oil, that is the natural base oil recovered from the mother earth. After that it's synthetic, semi-synthetic, which is a mixture of natural and man-made lubricant. Synthetic is 100% man-made lubricant made inside the lab. There is no relation with the natural lubricant. Is it true that synthetic oil is a lot more expensive than when it comes to costing? Yes, synthetic oil is approximately 9 to 10 times costlier than the natural mineral oil. And synthetic oils can be of PAG type, that is polyalkyl glycol, or polyalpha olefin, PAO type. Right now, in the present scenario, you might be seeing the base oils of ester base, polyester base. So they are the biodegradable types. What are additives? In a lubricant, you will find 95 to 97% is the composition of base oil, and 3 to 5% is the additive content. That depends entirely on the percent amount of the application, whether you are using a hydraulic oil, whether you are using a gear oil, whether you are using an engine oil. So in an engine oil, there is a anti-detergency additives, because the engine oil runs on a very high temperature, foam is developed. So high temperature antioxidants and detergency additives are much more into the engine oil than into a hydraulic oil. If you talk about, suppose, a turbine oil is 99% pure base oil, and only 1 or 2% is the additive percentage, because the total profit is imparted into a turbine oil is because of the base oils. So these are the major types of additives. You will find pour point depressants, which are introduced to reduce the pour point. There are viscosity modifiers,
There are dispersants which are just introduced to capture the dirt and dust contamination. Then there is the anti-wear additives, so that whenever it's mostly added to the gear oil, so that the wear of oil does not take place. Okay. Because there are the high level of high temperatures running in the oil, and whenever the oil is churning, when the teeth are meshing, so anti-wear additives are added to that. डिटर्जेंसी इज द एडिटिव जस्ट लाइक आप घर पे यूज़ करते हैं डिटर्जेंट सोप, उसका काम क्या है, डर्ट को कंटामिनेशन को होल्ड करना एंड आफ्टर दैट थ्रू करना. सो डिटर्जेंसी एडिटिव्स आर ओनली एडेड टू रिमूव द कंटामिनेशन. कोरोजन इनहिबिटर्स, जस्ट लाइक मैंने अभी बताया जैसे ऑयल एक हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मिक्सचर है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है. उसके जैसे ही ऑयल यूज़ होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, डिसइंटीग्रेट, मॉइस्चर डेवलप होता है, तो वो मॉइस्चर क्या करेगा, कोरोजन डेवलप करेगा. उस रस्ट को हटाने के लिए कोरोजन इनहिबिटर डाले जाते हैं. एंटीऑक्सीडेंट्स, ऑयल इटसेल्फ ऑक्सीडाइज नाउ, बिकॉज ऑक्सीजन जब भी आप उसको हीट देंगे वो ऑक्सीडाइज होगा. सो दैट ऑक्सीडेशन को, उस ऑक्सीडेशन को रिड्यूस करने के लिए वी ऐड एंटीऑक्सीडेंट. एंड सेकेंड एंड द लास्ट एडिटिव इज एंटीफोम. एंटीफोम व्हेनेवर द ऑयल इज चर्न, बिकॉज आप हाइड्रोलिक ऑयल में देखिए इतना हाई प्रेशर होता है, 180 बार 150 बार, इतने हाई प्रेशर पर जब ऑयल चर्न होता है, बिकॉज इट्स अ लुब्रिकेंट, तो उसके अंदर फोम्स डेवलप होते हैं. वो फोम की लेयर अगर टॉप पे रहेगी तो इट विल give damage to the system. So to reduce that damage, anti-foam additives are put into the system. Yeah. Viscosity. This is the basic parameter of a lubricant. आपने सुना होगा मेरा ऑयल 46 विस्कोसिटी, 68 विस्कोसिटी, अलग अलग टाइप की विस्कोसिटीज होती हैं, विच इज़ रिकमेंडेड बाय द OEM. तो विस्कोसिटी बेसिकली क्या है, ऑयल का इंटरनल रेजिस्टेंस फ्लो के लिए. ऑयल या कोई भी लुब्रिकेंट या कोई भी चीज़ कितने फ्लो से बहती है. आपने देखा होगा वाटर इज़ वेरी, वाटर और हनी को अगर आप कंपेयर करेंगे, हनी इज मच विस्कस, हनी इज़ वेरी थिक, उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, वाटर की विस्कोसिटी कम है. आप उससे ज़्यादा ऑयल पे जाएंगे, ऑयल की विस्कोसिटी और कम हो जाती है. And so, like we see even with a hydraulic oil, maybe the viscosity is a lot less than say gear oil. And also what we also see is that जब contamination level बढ़ता है कोई coolant में, we've seen that the viscosity level also keeps increasing because it gets उसके जो flow है, इसका flow rate starts reducing because it gets more and more thicker. So that is mostly viscosity. So viscosity जितना आपका, कितना गाढ़ा आपका कह सकते हैं आपका fluid है. Second most important parameter is viscosity index. Viscosity index is basically rate of change of viscosity with rate of change of temperature. जैसे ही आपका टेम्परेचर बढ़ता है, आपका ऑयल गाढ़ा होने लगता है, कम होने लगता है, विस्कोसिटी कम होने लगती है. जैसे ही आपका ऑयल का टेम्परेचर कम होता है, ऑयल गाढ़ा होने लगता है, यानी कि विस्कोसिटी बढ़ने लगती है. आपने देखा होगा पहले के टाइम जो हमारी पुरानी मशीन आती थी उनके अंदर हीटर्स लगे होते थे, क्योंकि सर्दियों में ड्यूरिंग कोल्ड स्टार्टअप यू नीड टू स्टार्ट द मशीन, आपको पहले ऑयल को हीट करना पड़ता था, अदरवाइज आपका पंप काम नहीं करता था, एंड यू माइट हैव फेस्ड अ लॉट ऑफ पंप फेलियर उस टाइम पे. बट आज की डेट में ऑयल की विस्कोसिटी, ऑयल की प्रॉपर्टीज़ में बहुत इंप्रूवमेंट आया है. तो एक विस्कोसिटी इंडेक्स ऑप्टिमम मेंटेन करते हैं, अच्छा विस्कोसिटी इंडेक्स मेंटेन करते हैं, तो आपको ऑयल को प्री हीट नहीं करना पड़ता. विस्कोसिटी इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा आपके ऑयल का, उतना आपका ऑयल आपके सिस्टम के लिए, आपकी परफॉर्मेंस के लिए अच्छा होगा. सो आज हाइड्रोलिक सिस्टम्स का सबसे इम्पॉर्टेंट स्लाइड मैं ये बोलूँगा. आज की डेट, पहले के सिस्टम आपने देखा होगा सम साइज बहुत बड़े हुआ करते थे, पावर आउटपुट कोई इतना टेंशन नहीं था. लेकिन आज की डेट में आपने देखा होगा मशीन्स बहुत कॉम्पैक्ट हो गई हैं. पहले एक इंजेक्शन मोल्डिंग जो 650 टन की आती थी, उसमें 2000-2500 लीटर ऑयल डलता था. आज की डेट में वो 1500 लीटर 1200 लीटर तक पहुंच गया है. तो अल्टीमेटली क्या, इन सबसे हुआ क्या है, अल्टीमेटली सारा स्ट्रेस लिया ऑयल ने है. वो तो पावर आउटपुट इंक्रीज हो गई है, हमारा सिस्टम का प्रेशर इंक्रीज हो गया है, बिकॉज द वॉल्यूम इज रिड्यूस और ओवरऑल एरिया ऑफ द मशीन इज रिड्यूस. कम वॉल्यूम में ऑयल को सर्कुलेट करना है, सिस्टम प्रेशर बढ़ गया है, एंड कम वॉल्यूम में जब हाई प्रेशर पे ऑयल सर्कुलेट करेगा तो ऑब्वियसली बात है टेम्परेचर भी बढ़ेगा. तो दिस विल लीड टू सर्विस एक्सपेक्टेशन की जो लाइफ है, हमारे को बहुत जल्दी ऑयल को सर्विस करना पड़ेगा. सेकेंड चीज़, रिजर्वायर साइज कम हो चुका है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टॉलरेंस लेवल. पहले हम नॉन सर्वो वॉल्व यूज़ किया करते थे, 68 विस्कोसिटी का ऑयल चलता था. राइट नाउ वी यूजिंग सर्वो वॉल्व. सर्वो मैकेनिज्म इंस्टॉल हो गया है, बहुत फाइन टॉलरेंस हो गई, इवन 0.3 0.5 माइक्रोन का साइज हो गया है. सो ये सारा स्ट्रेस अगर ऑयल पे है तो आप, you guys just can imagine कि आप slightest level of contamination can damage your entire hydraulic system. And that's when we see that अगर जो बड़े particle के contamination part होते हैं, those are not as harmful as the fine dust which is circulated, because tolerance इतनी कम है. तो जो बड़े particles at times can maybe hit and bounce back also, but जो small particles जो tolerance के अंदर घुस जाते हैं, those cause the main issues in those small tolerances. Yes. तो
the main requirement these days is to keep your system clean, because if a valve chatters, valve chokes, so ultimately the performance of your machine will reduce. Yeah. And आपने देखा होगा, if in order to gain the 100% performance of your machine, you need to keep your system clean. Yeah. Next component of your system, maybe a hydraulic system or whatever system, there are gears installed in it. Yeah. Gears basically, आप सब बहुत टेक्निकल हैं, you might be knowing gears का काम क्या होता है. Gears are used to change the direction of the system. Gears are used to change the speed, to reduce the torque, to increase the torque, or to change the direction of rotating axis. So these are the basic. This is the basic thing that is gears. Yeah. गेयर्स के अंदर जो मेजर कॉज होता है, आपने सबने सुना होगा माइक्रो पिटिंग, गेयर के दांत टूट गए, गेयर के टीथ, गेयर मिसिंग होने लगी, गेयर आवाज़ करने लगते हैं. अब देखा होगा, हम जब आज से कुछ टाइम पहले जब हम साइकिल चलाया करते थे, हमारी साइकिल की चेन ढीली हो जाती थी, वो स्लिप मारता था. बाइक में भी होता था, बाइक के गेयर स्लिप मारते थे बिकॉज उनके गेयर टीथ टूट जाते. द गेयर टीथ आर डैमेज. गेयर टीथ आर डैमेज करने का, गेयर टीथ डैमेज होने का मेन रीज़न क्या है? माइक्रो पिटिंग. माइक्रो पिटिंग अभी आगे, जैसे हम आगे जाएंगे कंटामिनेशन देखेंगे, तब आपको माइक्रो पिटिंग का एग्जैक्ट फंडा समझ आएगा. देयर इज अ फाइन लेवल ऑफ रस्ट, जो भी रस्ट है जो आपकी लेयर के टॉप लेवल को चिप करती है गियर को, उसकी वजह से सरफेस फिटिंग बढ़ता है. फिटिंग मीन्स द प्रेशर ऑन द सर्फेस दैट इज क्रिएटेड बाय जॉइनिंग ऑफ दैट मेटल कॉम्पोनेंट. सो उसकी वजह से क्या होगा, आपके गियर में एक फाइन मार्क आएगा. यदि नेक्स्ट स्लाइड में यू विल सी द मार्क्स. आपने देखा होगा इस टाइप के गियर मार्क्स आपको अपने गियर बॉक्सेस पे मिलेंगे, जो भी गियर बॉक्सेस डैमेज होंगे. दिखने में ये बहुत छोटा होता है, कई बार ऐसा होता है कि आपको दिखाई भी नहीं देगा, बट अल्टीमेटली क्या होगा, वो धीरे धीरे वो मेटल को वहाँ से वियर आउट करता रहेगा. वो वियर करता रहेगा, वो मेटल है, मेटल बहुत फाइन, आप सोचो बहुत कम माइक्रोन साइज का एक मेटल, सिस्टम भी घूम रहा है, सिस्टम 70-80 डिग्री पे चल रहा है, वो कहीं जाके चिपक जाएगा, गियर टीथ पे ही चिपकेगा. और जब गियर टीथ मेश होगा तो वो अल्टीमेटली वहाँ से दूसरा मेटल को भी चिप करके ले जाएगा. तो दिस विल लीड टू द डिपॉजिट एंड द कंटेमिनेशन ग्रोइंग इनटू योर गियर बॉक्स. तो आप अगर गियर बॉक्स के बॉटम में देखेंगे, जहाँ पे स्लज डेवलप होती है, ऑयल स्लज होती है, उसके अंदर आपको मेटल के एलिमेंट्स भी मिलेंगे. वो इसी वजह से आते हैं. सो हमारा पर्पस क्या है, हमें इसको माइक्रो पिटिंग को कैसे रोकें. माइक्रो पिटिंग, इफ़ यू वांट टू अवॉइड, वी नीड टू कीप आवर गियर ऑयल क्लीन फ्रॉम द मेटालिक कंटेमिनेशन, फ्रॉम द स्लज कंटेमिनेशन दैट इज डेवलप्ड इनटू द ऑयल बाय द मीन्स ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ द ऑयल. अनदर पैरामीटर, हम लुब्रिकेंट सेलेक्ट कैसे करें. कोई बोलता है 46 विस्कोसिटी यूज़ कर रहा हूँ, क्या मैं 68 यूज़ कर सकता हूँ? मैं 68 यूज़ कर रहा हूँ, क्या मैं 46 यूज़ कर सकता हूँ? सो पहला पैरामीटर OEM की रिकमेंडेशन. आपके पास जो भी हाइड्रोलिक सिस्टम है उसके अंदर पंप, चाहे वो रेक्सटॉक हो, डेनिसन हो, विकर्स हो, उनकी अपनी रिकमेंडेशन होती हैं. उनकी रिकमेंडेशन के बेसिस पे द OEM रिकमेंड्स द ऑयल. सर्वो वॉल्व्स यू नीड टू यूज़ 46, उससे और ज़्यादा फाइनल टॉलरेंसेस होंगी, यू नीड टू यूज़ 32 ऑयल. इवन 15 विस्कोसिटी हाइड्रोलिक ऑयल इज यूज्ड इन सिस्टम. In India only 15 viscosity is also being used in a lot of systems. In control valves basically. So after that the viscosity grade is identified as recommended by the OEM. Then the load conditions. अगर लोड बहुत हाई है, just like a gearbox है, gearbox में लोड ज़्यादा होता है, RPM कम होता है, तो ऑयल की विस्कोसिटी ज़्यादा होती है. गियर ऑयल आपने 46 विस्कोसिटी का नहीं सुना होगा. 68 विस्कोसिटी से स्टार्ट होता है गियर ऑयल एंड इट गोज अप टू 1000 CST. आफ्टर दैट ऑपरेटिंग टेम्परेचर, क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया था इससे पहले कि जैसे टेम्परेचर बढ़ता है विस्कोसिटी कम होती है. सो इफ़ योर ऑपरेटिंग टेम्परेचर इज़ वेरी हाई, यू नीड टू सेलेक्ट अ हायर विस्कोसिटी लुब्रिकेंट, ताकि उस और रनिंग टेम्परेचर पे आने का विस्कोसिटी प्रॉपर फिल्म मेंटेन कर पाए, आपका मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट ना हो. ऑयल की लाइफ की रिक्वायरमेंट. सपोज मेरे पास एक हॉइस्ट क्रेन है जिसको मैं रोज़ रोज़ सर्विस नहीं कर सकता. मेरे पास एक कूलिंग टावर है, इसका टॉप पे गियर बॉक्स लगा हुआ है, मैं उसके गियर बॉक्स को रोज़ सर्विस नहीं कर सकता, महीने में नहीं कर सकता. आई नीड कि मुझे 1 साल में सर्विस करनी है. सो वी विल स्विच फ्रॉम मिनरल टू सिंथेटिक, बिकॉज सिंथेटिक की लाइफ भी 5 to 6 टाइम्स होती है. नॉर्मल गियर ऑयल अगर 2000 घंटे चलेगा तो सिंथेटिक गियर ऑयल 12000 घंटे तक चलेगा. मीन्स 5 to 6 times the life of a lubricant is increased by using synthetic oil. So lubricant selection is totally dependent on your application, on the OEM recommendation, and you can proceed according to that. अब आते हैं हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर पे जो आज की डेट में वी आर फेसिंग, कंटेमिनेशन. सिस्टम क्लोज है भाई, OEM ने बहुत अच्छी मशीन दी है, पूरा बिल्कुल क्लोज करके दिया है, क्लोज लूप सिस्टम है. हाइड्रोलिक ऑयल इज टोटली क्लोज लूप, बट फिर भी कंटेमिनेशन है. देयर इज मॉइस्चर डेवलप्ड इनटू द ऑयल, देयर इज रस्ट इनटू द ऑयल.
किसने डाला वो रस्ट, वो मॉइस्चर कहाँ से आया? आपके ऑपरेटर ने नहीं डाला, OEM ने नहीं डाला, ऑयल मैन्युफैक्चरर ने नहीं डाला, ना मॉइस्चर डाला ना रस्ट डाला। अल्टीमेटली हुआ क्या? आपकी मशीन अभी 2 महीने बंद रही है। एंटायर प्लांट इज अंडर शट डाउन फॉर 2 months एंड मे बी अभी और भी कुछ टाइम रहेगी, बिकॉज 100% प्रोडक्शन अभी चालू नहीं हुआ है। बट ऑयल ऑयल तो ऑयल है, इट्स गेटिंग हीटेड इनटू द सिस्टम, क्लोज लूप है। आपने देखो बंद कमरे में आप एयर पास नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा है, आपको भी गर्मी लगती है, टेम्परेचर बढ़ता है रूम का, तो वहाँ पे भी वही हो रहा है, फ्यूम्स डेवलप हो रही हैं, मॉइस्चर डेवलप हो रहा है, मॉइस्चर से क्या हो रहा है? रस्ट हो रही है। तो जैसे ही आपने प्रेशर अपना सिस्टम ऑन किया, पंप चालू हुआ, पंप इतने हाई प्रेशर से उस रस्ट को निकालेगा, वो अल्टीमेटली आपके सिस्टम में घूमेगी। उसकी वजह से क्या होगा? आपके वॉल्व्स चोक हो जाएंगे, आपके पंप्स फेल होने शुरू हो जाएंगे। सो और पंप की कॉस्टिंग मेरे को आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है शायद। अगर सपोज आपकी 1 करोड़ की मशीन है तो उसके अंदर 15-20 लाख का तो पंप ही होता है। सो वो चीज़ें आपको डिसाइड करनी है, वेदर यू वांट टू चेंज द ऑयल, वेदर यू वांट टू चेंज द पंप, वेदर यू वांट टू चेंज द सिस्टम। ऑयल बहुत कॉस्टली है आज की डेट में, एंड एट दिस प्रेजेंट सिनेरियो वी आर फेसिंग अ क्राइसिस, वी कैनॉट अफोर्ड टू मल्टीप्लाई आवर कॉस्ट। हमें कम से कम कॉस्टिंग में मैक्सिमम आउटपुट निकालनी है। Main thing that should we see in contamination is that it's यही नहीं कि सिर्फ contamination कर क्या रहा है, मतलब contamination तो है fluid में, but main aim ये है कि जो contamination circulate हो रहा है उससे machine की performance भी कितनी affect हो रही है। अगर एक machine जैसे अगर injection molding machine है, उसका से X amount का target है per hour or per day, when the oil is contaminated, obviously machines are not running at optimal levels, तो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो x माइनस वाई आ सकती है। बिकॉज अगर आप 2 मशीन कंपेयर करेंगे, एक का कूलेंट बिल्कुल क्लीन है और एक का कंटामिनेटेड है, ऑब्वियसली जो बिल्कुल क्लीन ऑयल है वो बिल्कुल ऑप्टिमल एफिशिएंसी पे चल रहा है और उसकी एनर्जी कंजम्पशन भी कम है, तो आप परफॉर्मेंस आउटपुट देखेंगे, आप सेविंग देखेंगे। सो दैट इज ऑल मेजर्ड बाय द कंटामिनेशन लेवल इन द कूल इन द ऑयल। सो जैसे हम कंटेमिनेशन की बात करें, हम नॉर्मली बात करते हैं नास की, आज भी हम नास की बात करते हैं, बट नास इज़ ऑब्सोल्यूट सिंस 2009। उसके बाद से नास बंद हो चुका है। हम ISO 4406 की बात करते हैं, जिसके अंदर 4, 6 एंड 14 ये 3 माइक्रोन साइज़ के पार्टिकल काउंट की हम बात करते हैं। और टू बी मोर प्रिसाइज, जितना छोटा पार्टिकल साइज होगा उतना ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको सिस्टम में मिलेंगे। 4 माइक्रॉन्स के आपको मैक्सिमम पार्टिकल्स मिलेंगे, 6 के और कम होंगे, 14 के और ज़्यादा कम होंगे। तो ऐसा नहीं है कि 14 माइक्रॉन के ऊपर का पार्टिकल साइज नहीं होगा, बिल्कुल होगा, बट टू कीप द क्लियर, टू चेक द कंटामिनेशन लेवल, ये स्टैंडर्ड है ISO का, हम उसके बेसिस पे चेक करते हैं। एंड मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यस, ये एक चार्ट है जो हमने दिखाया, ऑनलाइन गूगल पे भी अवेलेबल है, वी हैव मेड इट। इस चार्ट में बेसिकली क्या है, हमने ISO को और नास लेवल को कंपेयर किया है। सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट अ नास लेवल ऑफ 6, तो नास का ISO कोड इक्विवेलेंट में 17, 15, 12 होता है। अब आप पूछेंगे ये कोड कहाँ से पता लगेगा, मैं कौन से ऑयल को मेंटेन करूँ, किस लेवल पे, किस कोड पे मेंटेन करूँ? आपकी हर मशीन मैनुअल के साथ में क्लीनलेस लेवल्स आते हैं, इन सर्विस ऑयल के और फ्रेश ऑयल के। उसके अंदर आपको जो कोड्स मिलेंगे, आपको नास भी मिलेगा एंड आपको ISO 4406 भी मिलेगा। नॉर्मली हम बात करें तो जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, इवन एनी एक्स मैन्युफैक्चरर ऑफ इंडिया जो भी सप्लाई कर रहे हैं, वो नास 5 से लेकर नास 9, 10 तक का ऑयल सप्लाई करते हैं। अगर आप बहुत अच्छे मैन्युफैक्चरर की बात करेंगे, उनका ऑयल क्लियर होगा, और अगर नॉर्मल कॉस्टिंग पे जाएंगे तो उनका ऑयल नास 10 तक भी हो सकता है। और किसी भी मशीन मैन्युफैक्चरर की रिक्वायरमेंट नास 6 से ऊपर के ऑयल की होती ही नहीं है। मे बी वो हाइड्रोलिक हो चाहे वो गेयर ऑयल हो, हर कोई ये चाहता है कि उससे ज़्यादा क्लियर ऑयल सिस्टम में रहे। सो अल्टीमेटली हमें ऑयल क्लीन रखना है। ज़रूरी नहीं है कि आपने नया ऑयल ख़रीदा और वो आप ये सोचें कि वो 100% क्लीन ही मिलेगा या उसका नास मेरे को परफेक्ट ही मिलेगा। मैंने एक चार्ट यहाँ पे शेयर किया है, इस चार्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि नास का लेवल क्या है और OEM का लेवल क्या है, एंड व्हाट इज़ द क्लीननेस लेवल दैट वी कैन प्रोवाइड, मे बी इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोलिक्स, मे बी इन टर्म्स ऑफ गेयर ऑयल टू योर सिस्टम्स। ये टिपिकली एक क्लासिफिकेशन है कि अलग अलग सिस्टम, सपोज आप जनरल मशीन्स की बात करें, आप हाई प्रेशर रिक्वायरमेंट्स की बात करें, सर्वो वॉल्व्स की बात करें, वहाँ पे क्या क्लीननेस लेवल की रिक्वायरमेंट होती है। दिस क्लीननेस ISO कोड यू कैन कंपेयर टू द प्रीवियस स्लाइड्स, और आप अपने सिस्टम के जो आपका मैनुअल के अंदर लिखा हुआ है उसके से बेसिकली आप उसको कंपेयर कर सकते हैं। इससे आपको ये आइडिया मिलेगा कि योर करंट ऑयल का लेवल जो है दैट इज़ क्रिटिकल, ऑयल नीड्स टू बी चेंज और क्लीन।
so that your system runs up and clean. कंटेमिनेशन, हमने बात करी कंटेमिनेशन की. कंटेमिनेशन आया कहाँ से? ऐसे ब्रीदर आपने बहुत लोगों ने अपने सिस्टम में देखे होंगे. मैं हाइड्रोलिक ऑयल या इंजेक्शन मोल्डिंग वाले प्लांट की बात नहीं करूँगा, वो उनके क्लोज प्लांट्स होते हैं, ओपन पिट, ओपन एनवायरनमेंट जिनका होता है, जो कंस्ट्रक्शन मशीनरी में है, फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग में है, या आप ट्रांसफार्मर की बात करें, मतलब बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे आपको इस टाइप के ब्रीदर्स मिलेंगे. क्योंकि ब्रीदर क्या है, हर किसी को गेयर ऑयल पे ब्रीदर मिलता है, फिल्ट्रेशन मशीन में ब्रीदर मिलता है. ब्रीदर सबको एक एक्स्ट्रा पार्ट लगता है. ब्रीदर की इंपॉर्टेंस कोई नहीं समझता. सब ज़्यादातर इंडस्ट्री में ब्रीदर ऐसे ही चोक रहते हैं. क्यों रहते हैं? अगर हम ये ब्रीदर चोक हुए क्यों हैं? बिकॉज इन्होंने इसके ऑयल के अंदर कंटेमिनेशन एंटर हो रहा था, वो ब्रीदर अटक गया. जितना अंदर जाना था वो जा चुका है, बाकी ऊपर अटका हुआ है. तो अल्टीमेटली आपका ऑयल कंटेमिनेटेड हो चुका है. अगर आपका ब्रीदर क्लीन रहेगा, दैट मीन्स योर ऑयल इज क्लीन. ऑयल के अंदर कोई कंटेमिनेशन नहीं है. सो सबसे पहले कंटेमिनेशन चेक करने के लिए यू नीड टू चेक द कंडीशन ऑफ योर ब्रीदर्स. ब्रीदर, और जैसे आपने अभी बताया, टैंक के टॉप पे लगा होता है, देयर इज अ स्पेस प्रोवाइडेड दैट. सो ब्रीदर की कंडीशन मॉनिटर करने से यू कैन चेक द कंटेमिनेशन ऑफ योर ऑयल एंड यू कैन कीप योर ऑयल क्लीन. फिल्टर्स, आपके हाइड्रोलिक सिस्टम्स में, गियर सिस्टम्स में देयर आर फिल्टर्स, इन बिल्ट फिल्टर प्रोवाइडेड. आप सोचते हैं मशीन और फिल्टर की बेसिक जो कंस्ट्रक्शन है, दैट इज शोन इन द करंट स्लाइड. फिल्टर में बेसिकली क्या है, लेयर्स होती हैं, बाहर कोर होती है, उसके अंदर फिल्टर मीडिया, वो पेपर हो सकता है, वो सिरामिक हो सकता है, वो कार्बन हो सकता है, वो अलग अलग OEM, अलग अलग एप्लीकेशन और डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स के हिसाब से होता है. सो ये आपके फिल्टर्स आपके सिस्टम में लगे हुए हैं. मे बी वो ल्यूब ऑयल फिल्टर हो, मे बी वो हाइड्रोलिक ऑयल फिल्टर हो, फ्यूल फिल्टर हो. सो ये बेसिकली फिल्टर का कंस्ट्रक्शन है. अब फिल्टर में से हम कंटेमिनेशन को कैसे रिलेट कर सकते हैं? आप बोलेंगे मेरे सिस्टम में मशीन है, मेरी परफेक्ट चल रही है, मेरा फिल्टर कभी चोक ही नहीं होता. माई फिल्टर नेवर चोक्स, दैट मीन्स माई सिस्टम इज एंटायरली क्लीन. नो, आई एम सॉरी, यू आर रॉन्ग. फिल्टर चोक नहीं हो रहा, दैट मीन्स आपका सिस्टम क्लीन नहीं है, आपका फिल्टर एफिशिएंट नहीं है. जो आपको OEM ने प्रोवाइड किया था, दैट फिल्टर इज नॉट एफिशिएंट टू क्लियर द कंटेमिनेशन इन योर ऑयल. Because there is no oil in the world which never gets contaminated. Also we see that there are filters which are put online भी लगे होते हैं और offline भी होते हैं. कुछ bypass loop में होते हैं, कुछ online filters होते हैं. तो हम क्या कहते हैं कि जो online filters है, because वो flow में होते हैं, they can only be set to a certain micron level. आप set कर सकते हो 40 माइक्रोन के या 20 या 30 माइक्रोन के आप online filter set करते हो. उससे lower filtration to get down to 1 micron or 3 micron filtration, it is very difficult to put it online because फ्लो में रिडक्शन आ सकता है और प्रेशर रिडक्शन होती है. तो वी हैव टू टेक अ बाईपास लूप. आप एक बाईपास फीड लेंगे, वहाँ पे जाकर फ्लो. तो अगर आप कहेंगे मेरे मशीन पे ऑलरेडी फिल्टर है, तो वो फिल्टर है, लेकिन वो कितना एफिशिएंटली काम कर रहा है, दैट इज़ व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जैक्टली. सो एफिशिएंसी चेक कैसे करें फिल्टर की? हाउ टू चेक द एफिशिएंसी ऑफ अ फिल्टर? हम आपने शायद, आपको वैसे फिल्टर वालों ने शायद बताया नहीं होगा, बट वी नीड टू आइडेंटिफाई द बीटा रेशियो ऑफ द फिल्टर. अब आप पूछेंगे बीटा रेशियो क्या होती है? आपके फिल्टर में एक इनलेट होता है, एक आउटलेट होता है. फिल्टर में ऑयल जाता है, फिल्टर होकर बाहर निकलता है. जो ऑयल बाहर निकल रहा है और जो ऑयल अंदर जा रहा है, उसकी रेशियो इज नोन एज बीटा रेशियो. अपस्ट्रीम रेशियो ऑफ अपस्ट्रीम, रेशियो अपस्ट्रीम टू द रेशियो डिवाइडेड बाय डाउनस्ट्रीम इज द रेशियो, इज द बीटा रेशियो. सो अगर आपके फिल्टर की बीटा रेशियो, अब आपके पास दो फिल्टर हैं सपोज, एक फिल्टर है 10 बीटा रेशियो का, एक फिल्टर है 100 बीटा रेशियो का. तो विच फिल्टर टू चूज? ऑब्वियसली 100. अब आप बोलेंगे मेरे पास 10 माइक्रोन का फिल्टर है, मेरे सिस्टम में लगा हुआ है, ठीक है लगा हुआ है, बट ज़रूरी नहीं है कि मैं जो आपको 10 माइक्रोन का फिल्टर दूंगा उसकी एफिशिएंसी उसके बराबर हो. क्यों? बिकॉज आई विल इंक्रीज द बीटा रेशियो. मैं ये नहीं कह रहा OEM के सिस्टम को आप मॉडिफाई करो. अगर आप चाहें अपने सिस्टम को और क्लीन रखना, तो करंट फिल्टर्स का बीटा रेशियो इंक्रीज करके परचेज करें एंड यू कैन क्लियर योर सिस्टम, इम्प्रूव योर सिस्टम. सो दिस इज हाउ टू. पहले तो हमने बीटा रेशियो डिस्कस किया कि हम कैसे एफिशिएंसी चेक कर सकते हैं, हाउ टू क्लियर कीप योर सिस्टम मोर क्लीन, मोर एफिशिएंट. एंड अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, so mainly that's what we discussed. अभी तक हमने जैसे what Rahul has been through right now is that अभी COVID, because COVID को लेकर अभी क्या आपकी lubrication है, क्या storage principles है, how to best store your coolants, your oils. And now moving to the main part is the solution, contamination controlling, how to best contain and control your contamination. So obviously after you've seen आपने अपनी contamination assess कर ली है, क्या ISO levels है, NAS levels of your existing system, obviously the best way to do this is through filtration.
And what we suggest is always to get down to nominal or 1 micron filtration. We do kidney loop filtration through our oil filtration machines. Now, coolant coming in goes into the machine. इसमें हमारे filter cartridges होते हैं which are under 1 micron, which we move to a later slide. We'll show you exactly how it works. And then they come out, and the oil comes out completely clean. Uh, so before we get to the filtration, we'll show on storage and handling of best storage and handling practices that are ensured to make sure आपकी lubrication कैसे रखनी चाहिए. स्टोरेज एंड हैंडलिंग सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है लुब्रिकेंट को स्टोर करने का. आपने ऑयल लिया, आपने उसको ओपन में रख दिया, मॉइस्चर आएगा, उसमें ऐड होगा और अल्टीमेटली जब आप फ्रेश ऑयल डालेंगे उसके अंदर मॉइस्चर मिलेगा. सो ऑयल लेना, अच्छा ब्रांड का ऑयल लेना इंपॉर्टेंट है. सेकंड चीज़, उसको सही से स्टोर करना भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑयल इज़ अ हाइड्रोकार्बन, ऑयल इज़ अ केमिकल. अगर वो कहीं गिरेगा आपको चोट लग सकती है. इट माइट हार्म योर सिस्टम, आपके एम्प्लॉयज़ को चोट लग सकती है. तो कीप योर सिस्टम एंड योर एम्प्लॉयज़ सेफ. आपको ऑयल को सही से स्टोर करना बहुत ज़रूरी है. एंड दीज आर सम ऑफ द प्रैक्टिसेस. आपने बहुत सारे प्लांट्स में देखा होगा, एक कैन है, उसी कैन से हाइड्रोलिक ऑयल भी पुट कर रहे हैं, उसी कैन से गियर ऑयल भी पुट कर रहे हैं, उसी ऑयल कैन को साफ भी नहीं करते हैं और उससे अपना कंप्रेसर ऑयल भी चार्ज कर देते हैं. तो अल्टीमेटली क्या है, वो ऑयल मिक्स हो जाता है. तो मेनली हुआ क्या है कि बिकॉज अभी इस टाइम पर बिकॉज प्लांट्स काफ़ी शटडाउन में रहे हैं, एंड ऑब्वियसली आगे जब शटडाउन भी आते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप ऑयल निकालें आप अपने मशीन्स के थ्रू. स्टोरेज ऑफ ऑयल, आप अगर उसको बैरल्स में रख रहे हैं या कंटेनर्स में रख रहे हैं, हाउ इज इट बेस्ट केप्ट to ensure that it is completely clean and ज़्यादा contamination ना जाए before the oil goes back into the machine and it runs through again. तो इस टाइप के कैंस किसी के प्लांट में नहीं होने चाहिए. आप चेक कीजिए आपके सारे कैंस क्लीन रहें और मेंटेन डिफरेंट कैंस फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ लुब्रिकेंट. ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है जो काफ़ी सारी कंपनीज आज के डेट में प्रमोट कर रही हैं, इंडस्ट्री में मेंटेन कर रहे हैं. एंड आई एम क्वाइट श्योर कि आपने भी अपने प्लांट में ज़रूर किया होगा, लेकिन अगर नहीं किया है तो इट्स नेवर टू लेट, बिकॉज हमें कॉस्टिंग मिनिमम टू मिनिमम रखनी है. आप इस प्रोसेस को फॉलो करें. अब आते हैं मॉइस्चर पे. ड्रम को स्टोर कैसे करें. आपने देखा होगा प्रॉपरली, मैंने बैरल लिया, मैंने सील बैरल रखा हुआ है, 2 महीने 3 महीने बैरल स्टोर किया और उसके बाद में ऑयल जब आपने बैरल मशीन से निकाला तो अंदर पानी था. तो वो पानी आया कैसे? ना तो OEM ने डाला, ना मैन्युफैक्चरर ने डाला, ना ऑयल बैरल के अंदर पानी था. अल्टीमेटली बैरल भी आपका सील्ड है. तो होता क्या है, आपका ड्रम जब रखा होता है तो उसके अंदर बरसात, धूप में क्या हीट करने से चीज़ एक्सपैंड होती है, ऑयल एक्सपैंड्स. तो गर्मियों में क्या होगा, ऑयल आपका एक्सपैंड होगा एंड रात के टाइम में जैसे ही टेम्परेचर कम होगा ऑयल वापस आएगा और ब्रीदर के थ्रू आपके बैरल के अंदर 2 होल्स होते हैं. एक तो होता है थोड़ा बड़े साइज़ का होल, एक होता है स्मॉल साइज़ का. तो जो बड़ा वाला है दैट इज़ जिसमें अंदर आप पंप इंस्टॉल करते हैं. सेकेंड वाला जो है उसको ब्रीदर बोलते हैं. ब्रीदर से क्या है, ऑयल एयर ब्रीथ करता है. तो अल्टीमेटली क्या है, आपको पहली चीज़ तो जैसे ये बैरल ऐसे खड़े रखे हैं, सबसे पहले तो आपको ऐसे बैरल नहीं रखने हैं प्लांट में. अगर आपको अपने ऑयल की लाइफ बढ़ानी है, आपको बैरल कैसे रखने हैं, दिस इज़ द परफेक्ट पोजीशन. दिस इज़ नॉट द पोजीशन टू कीप योर ड्रम्स. आपको ड्रम को हमेशा टिल्ट करके रखना है. पीछे हो गया क्या? तो बेसिकली क्या है, ड्रम को कीप रखने की पोजीशन क्या है, आपने घड़ी की सुइयाँ देखी होंगी 3 और 9. तो दोनों आपके जो ओपनिंग्स हैं ड्रम के, वो 3 और 9 की पोजीशन में रहने चाहिए. सो दैट इज़ द परफेक्ट पोजीशन. जो एम्प्टी स्पेस है वो टॉप पे रहेगी और आपके ऑयल के अंदर कभी भी मॉइस्चर या कोई कंटामिनेशन एंटर नहीं करेगा इन योर सील्ड बैरल. सेकेंड हम आते हैं स्टोरेज पे. ड्रम के स्टोरेज में कई बार आपने काफ़ी सारे प्लांट्स में देखा होगा, ऑयल निकाला एंड उसके बाद उसको सील करके ऐसे ही ओपन में छोड़ दिया. सो यू नीड टू कंटेन दैट ड्रम. आप ड्रम कवर्स यूज़ कर सकते हैं, आप बंजिस यूज़ कर सकते हैं. आज की डेट में एंटी स्पिल पैलेट्स आ गई हैं, ताकि आप ऑयल निकालें, जो भी ऑयल गिरता है नीचे गिरता है, यू कैन यूटिलाइज इट लेटर आफ्टर फिल्टरिंग. सो ये सारी फैसिलिटीज़ यूज़ करने से आपकी ऑयल की वेस्टेज कम होगी, आपके प्लांट में मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रोडक्शन सेविंग्स आएंगी. ड्रम को कभी भी आप देखा होगा, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, ड्रम को लेते हैं. एक ड्रम का वज़न कितना होगा? एक ऑयल का ड्रम अप्रॉक्सीमेटली 180 से 205 किलो के आसपास का होता है. तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ द ड्रम कि आपका ऑयल लीक ना हो. आप प्रॉपर ट्रॉलीज के साथ में उसको कैरी करें, फोकलिफ्ट से ऑयल को कैरी करें, ड्रम की इंटीरियर्स को किसी को डैमेज ना करें. और हमेशा जब ऑयल का ड्रम खोलें तो देखें उसके अंदर रस्टिंग तो नहीं है, बिकॉज रस्ट डेवलप हो गई अगर ऑयल के अंदर तो आपके सिस्टम को ख़राब करेगी. और आपको जब भी ऑयल चार्ज करना है, यू नीड टू चार्ज इट बाय मीन्स ऑफ अ फिल्ट्रेशन मशीन.
आप फिल्ट्रेशन मशीन के थ्रू चार्ज करेंगे, आपके ऑयल के अंदर मॉइस्चर होगा या डस्ट होगा वो भी निकल जाएगा, ऑयल बिल्कुल फ्रेश चार्ज होगा। अब ऑयल की शेल्फ लाइफ, ये बेसिकली लुब्रिकेंट से रिलेटेड है। नॉर्मली एक हाइड्रोलिक ऑयल, गियर ऑयल या किसी भी टाइप के लुब्रिकेंट की लाइफ वो 4 या 5 साल की होती है, डिपेंडिंग ऑन द मैन्युफैक्चरर और अलग अलग टाइप के। एंड ग्रीसेस की लाइफ 2 साल की अप्रॉक्सीमेट होती है। सो जैसे हमने एक आपके स्टोर वालों को बिल्कुल वाकिफ़ होंगे इस चीज़ से, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। आपने जो आज सबसे पहले परचेज़ किया लुब्रिकेंट, उसको सबसे पहले आप मशीन में चार्ज करें। ये ना हो कि आपका एक ड्रम जो 1 साल पहले आया था वो रखा हुआ है, लेकिन नया ऑयल चार्ज होता जा रहा है, तो अल्टीमेटली वो आपके लिए वेस्टेज है। Yeah. अगर नहीं किया है तो आज ही जाएं अपने स्टोर में और जो भी सबसे पुराना ऑयल का ड्रम है उसको सबसे पहले चार्ज करें। So now that we've been through complete storage and lubrication, just थोड़ा brief introduction on what we do is because आप बोलेंगे ये सब what is the solution to coming out of lockdown and the issues we have heard from our customers कि क्या वो लोग कह रहे हैं कि अभी shutdown से निकले हैं, ऑयल पड़ा हुआ बैरल्स में, तो क्या कैसे करें उसको फिल्टर, काफ़ी कंटामिनेशन जनरेट हो चुकी है, बैक्टीरिया आ चुका है, सॉरी मॉइस्चर आ चुका है कंटामिनेशन में, बैरल्स में रखे हुए रस्ट आ गई है। तो हमारा क्लीन ऑयल फिल्ट्रेशन इज़ बेसिकली अ 1 माइक्रोन फिल्ट्रेशन सिस्टम है हमारा, जो मॉइस्चर भी रिमूव करता है और कंटामिनेशन दोनों एक ही मशीन के थ्रू। बेनिफिट्स तो आपको एक्सप्लेन हो गए कि फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल में क्या बेनिफिट्स रहते हैं। So clean oil filtration is basically a UK based company and our filter cartridges are imported directly from the UK and we do under 1 micron filtration for complete whether it's आपका hydraulic oil, gear oil, lubrication, anti-rust, rust preventive oil, any oil, lubrication or oil that you have in your plant. So the main advantages of clean oil versus any other sort of filtration is that हमारा complete depth filtration है like a sponge. हमारे filter cartridge है जैसे आप इस फोटो पे देख रहे हैं, तो oil comes into the cartridge and there is no heating principle, there is no damage to the properties of the oil, which is most important. And how it does is that oil comes into the cartridge and the cartridge absorbs both contamination and moisture like a sponge into the cartridge and only clean oil comes out. तो कुछ additives are not being damaged और कुछ damage oil properties damage नहीं हो रही है. Simple depth filtration है, which is one of the best ways of filtration of any type of oil. So filtration of brand new lubricants is typically new oils delivered to customers. आपको नया ऑयल आता है कैस्ट्रॉल से या शेल से या कोई भी ऑयल प्रोवाइडर है, आपको ऑयल सप्लाई करेंगे एट अ सर्टन नास लेवल. आप बोलेंगे बट व्हाट हैपेंस इज अ लॉट ऑफ oil providers work directly with us also, because when the customer needs NAS 3 or NAS 4 levels of oil completely clean, before packaging वो filter करके ही oil package करते हैं. तो आपको जो oil, the filtration we do is better than the new oil at times also. या आप देखेंगे at some point new oil provided by supplier and oil after filtration, because आप जानते हैं कि जब barrels में oil आते हैं काफ़ी transportation के बाद आते हैं, also oil kept in उनके MSA SS के tanks होते हैं, their tanks of oil can be slightly contaminated. So when they package the oil, they pass it through filtration. These are a few case studies which I can email you after this video also. आप please मुझे link भेज दीजिए. So a lot of good case studies that we can advise on who we work with and lot of customers we work with. इसके बाद एक customer की slide भी होगी जो हमारे customers हैं. So we can come into that. At the same time हमारे बहुत OEMs we work with directly, injection molding machine manufacturers है, and there are a lot of direct power pack machine manufacturers where we install the machine along with their machine itself. So a lot of places where we've shown great case studies, which we will email you after this video, like this, and just a list of our customers. So as you can see, we work with the entire industry, entire industrial belt and range. आपकी कोई भी industry हो, whether it is automotive industry, it's plastic industry, government में power plants होंगे, turbines, whether it is OEMs, their tier 1, tier 2 suppliers, sugar mills, cement, जहाँ पर भी oil है, gear oil है, hydraulic oil है, we work with them all. करीब 30 साल से we've been supplying to the industry when it comes to complete filtration.
Uh, so thank you for taking out time and going through our video, and I thank you Rahul also. काफ़ी डिटेल्ड डिस्कशन हुई है ऑन लुब्रिकेशन, सेफ हैंडलिंग ऑफ लुब्रिकेंट्स, ब्रिंगिंग योर लुब्रिकेंट्स आउट ऑफ कोविड इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. कैसे आप अपना लुब्रिकेंट्स लॉकडाउन, इतने लंबे लॉकडाउन से निकाल रहे हैं, एंड हाउ टू कीप योर लुब्रिकेंट सेफ. थैंक यू एवरीवन फॉर योर सपोर्ट. आपने हमें काफ़ी सपोर्ट किया और हमारा आज का मेन मोटिव यही था कि आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम अपना सपोर्ट प्रोवाइड करें. आप सेफ़ रहें, अपने लुब्रिकेंट्स को सेफ रखें, अपने प्लांट को सेफ रखें, अपने एम्प्लॉयज़ को सेफ रखें, एंड लेट अस कम आउट ऑफ दिस कोविड जोन टाइम वेरी सून. कम आउट. So please, as you know, please subscribe to our channel for more and more information on lubrication, coolants, oils. As you know, we do a lot of other filtration like magnetic filtration करते हैं, coolant filtration. We do analysis also. आप चाहते हैं how your oil is being kept, in-house analysis. So we do complete provide. So please do subscribe. We'll keep sharing more and more information as we can. And any questions you have, you can please write them in the comment section below, and we can respond to you as आप reply करेंगे. So thank you, and please stay safe. Thank you. Stay safe.